Thank you, Alexa, for recording. Got it. Thank you so much. Okay. A very good morning to everyone. A very good afternoon and a very good evening. And then at the end, we'll say fine. Okay. So we'll cut what we are doing. It's very obvious. We are still in current electricity. This is the 10th episode, but this will be the 12th video on current electricity. Fine. You know the reasons why. We'll continue to work on combination of resistors, and this now the numericals have started. This is the part one of the numericals. Fine. अब इस चैप्टर में ना सिंपली न्यूमेरिकल्स बचा है और कुछ नहीं है. विल each passing day will increase the level of numericals, and लास्ट में जब खत्म हो जाएगा सारा न्यूमेरिकल्स, I'll just do one video on theory. Chapter will be over. The chapter is almost over. Theory कुछ बचा नहीं है पढ़ाने के लिए, but numericals, पाटीशाटी. Numericals means पाटीशाटी. Fine. Okay, let's begin. एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन से शुरू करेंगे. एकदम लॉलीपॉप. The first question is, if two resistors of resistors R1 and R2 are connected in series and in parallel, find the equivalent resistance in each case. When the two resistors are connected in series and when the two resistors are connected in parallel, find the equivalent resistance. एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है. सॉल्यूशन वन, इन सीरीज. इन सीरीज क्या है? आपके पास दो रेजिस्टर्स है, ये एक रेजिस्टर और ये एक रेजिस्टर, दोनों कनेक्टेड है इन सीरीज में. इन सीरीज में सेम लाइन, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2. तो जो रोल ये दोनों मिलकर प्ले कर रहा है, the same role can also be played by a single resistor, which is called the equivalent resistance, R equivalent. और इस सिचुएशन में जो R equivalent का वैल्यू होता है वो होता है सिंपली R1 plus R2, अगर if they are in series combination. But number two, if they are in parallel, if they are in parallel, so in that situation what actually happens is parallel, they are connected in this manner. They are connected in this manner. This is called the parallel combination. This is resistance R1, this is resistance R2, and I have told you all that the role which these two play can also be played by a single resistor. जो रोल ये दोनों मिलकर प्ले कर रहा था वो काम एक सिंगल रेजिस्टर भी कर पाएगा. अगर इसको हम लोग ने आर इक्विवेलेंट नाम दिया है, तो इस सिचुएशन में जो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू होता है, रेसिप्रोकल का वैल्यू नहीं, रेसिप्रोकल का वैल्यू नहीं, डायरेक्ट वैल्यू जो होता है प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस. प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंसेस बाय एडिशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस. और अगर अच्छे से करना है, बेसिकली करना है, ऐसे कर सकते हैं. अगर ये है पैरेलल में, हम लोग क्या पता है, 1 by R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2. ये तो पता है ना. तो यहाँ पे 1 by R equivalent ये हो जाएगा. आप इसका एलसीएम लोगे तो आंसर आएगा R1 into R2. Just give me 1 second. अरे भैया एक सेकंड दो. Just give me 1 second. हाँ चलो. अच्छा देखो, हम लोग यही पढ़े ना सीरीज में सिंपल अलजेब्रिक एडिशन, बट व्हेन इन पैरेलल क्या होता है, रेसिप्रोकल का एडिशन होता है. तो यहाँ पे अभी भी रेसिप्रोकल रखे हैं हम लोग. अगर एलसीएम लोगे तो R1 into R2 आ जाएगा. जब यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा R2, यहाँ पे आ जाएगा R1. इसको हम बोल सकते हैं ना, इसको सिंपली लिख रहे हैं R1 plus R2. क्या फर्क पड़ता है, R2 plus R1 is same as R1 plus R2. ये हो गया R1 into R2. ये है 1 by R equivalent. तो R equivalent करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल बोथ साइड. दुनिया पलट गई, जज्बात पलट गया, सब कुछ पलट गया. मीम इज देयर ना.
सब इमोशन पलट गया उसका। सिंपली R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, दैट्स इट, खत्म। तो ये चीज हम आप लोग को बोल से याद रख लेने के लिए कि if two resistors are in parallel, the equivalent resistance will be product of the two by sum of the two. But in this case, it will simply be algebraic addition. Fine. चलो बढ़िया. Okay. In this situation, find the equivalent resistance between A and B. This is the point A. This is the point B. This is the point A. This is the point B. And find the equivalent resistance between A and B. ये तो बोला ना, और कुछ बोला नहीं है. तो अब देखो ये कैसा कॉम्बिनेशन है. प्लीज अब मेरा बात था ध्यान सुनो. जब भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को बोलेगा ना, वो बोलेगा ऑलवेज बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन ए एंड बी. द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बिटवीन टू पॉइंट्स. इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में. अब मान लो यहाँ, अब बस मान लो यहां से अगर करंट आई फ्लो करता है, तो वो सेम करंट आई R1 के अक्रॉस फ्लो करेगा, सेम करंट आई R2 के अक्रॉस फ्लो करेगा, सेम करंट आई R3 के अक्रॉस भी फ्लो करेगा. इसका मतलब क्या हुआ? R1 R2 R3 आर इन सीरीज और पैरेलल. R1 R2 R3 आर इन सीरीज और पैरेलल. सीरीज. तो सॉल्यूशन ऐसे किया जाएगा. सॉल्यूशन ऐसे लिख के करोगे प्लीज. हियर R1 R2 R3 are in series. Are in series. Therefore, equivalent resistance R equivalent is equals to simply R1 plus R2 plus R3, which is equals to कितना? 10 plus 8 plus 20. 10 plus 8 plus 20. That means 38 ओम. और फिर यहाँ पे इसको ऐसे करके इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना दो. ये ए, ये पॉइंट बी, और ये है अगर आर इक्विवेलेंट, तो इसका वैल्यू आया कितना? 38 ओम. हम लोग सारा आंसर्स का सॉल्यूशन ऐसे छोड़ेंगे. इज इट क्लियर? भाई येलो से दिखाई दे रहा है क्या? जो जो भी है ऐसे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग. हर एक न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन ऐसे किया जाएगा. आराम से धीरे धीरे समझ के करो. ठीक है? ओके फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्या बोला है? बोला है फिर से वही सेम क्वेश्चन. फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. हमने क्या कहा था कि जब भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को बोलेगा, हमेशा बिटवीन टू पॉइंट्स बोलेगा. फाइन. फाइन. अब सोचो आपको बोला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बिटवीन द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. तो जब इस टर्मिनल ए से करंट फ्लो करेगा आई, तो होगा क्या? यहां से करंट यहां तक आई आएगा, पर यहां तक आने के बाद करंट को तीन डिफरेंट पाथ मिलेगा. तो यहां से कुछ करंट जाएगा, यहां से कुछ, यहां से कुछ. मतलब क्या हुआ? I1 I2 I3. फिर यहां से करंट I3 निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, और फिर वापस ऐड होकर यहां से आई आ जाएगा. तो इस सिचुएशन में तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस सेम करंट फ्लो कर रहा है कि डिफरेंट करंट? R1 R2 R3 के अक्रॉस सेम करंट फ्लो कर रहा है या डिफरेंट करंट? डिफरेंट करंट. इसका मतलब ये सीरीज में है कि पैरेलल में है? फिर सोचिए बताओ. क्योंकि हम लोग ने बेसिकली पढ़ चुका है कि अगर सेम करंट फ्लो करता है, अगर रेजिस्टर्स के अक्रॉस सेम करंट फ्लो करता है, तो सीरीज में है, वरना पैरेलल में है. अगर डिफरेंट करंट फ्लो कर रहा है अक्रॉस ईच रेजिस्टर, तो पैरेलल में है. यहाँ पे सॉल्यूशन के नाम पे क्या लिखेंगे हम लोग? हियर R1 R2 R3 are in parallel. Are in parallel. Therefore, the equivalent resistance is
1/r इक्विवेलेंट, यहाँ पे दो, अगर दो होता तो हम जल्दी से लिख देते आंसर, यहाँ पे 3 है, तो 3 के लिए हमको करना पड़ेगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। R1 का वैल्यू कितना है 6 ओम, R2 का 9 ओम, R3 का 18 ओम। ठीक है, अब आपका मर्जी है आप कैसे कैलकुलेट करते हो। एलसीएम ले लेते हैं हम, इसका एलसीएम आएगा 18, 18 डिवाइड बाई 6 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आया 3, 19 डिवाइड बाई 18 9 2 इंटू 1 2, 18 डिवाइड बाई 18 1 1 इंटू 1, ये हो गया आपका 1/r इक्विवेलेंट, रेसिप्रोकल ऑफ r इक्विवेलेंट। इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो 1/r इक्विवेलेंट आया कितना 3 + 2 5 6 6/18, 6/18। देयरफॉर R इक्विवेलेंट हो जाएगा, उल्टा कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो हो जाएगा 18/6, तो आंसर हो जाएगा 3 ओम। बस हो गया खत्म। और यहाँ पे इसके जगह मतलब इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा ला सकते हैं हम, ये पॉइंट अगर ए है, जो रोल ये तीनों प्ले कर रहा है साथ में, वो रोल अकेला बंदा ये आर इक्विवेलेंट कर लेगा अगर इसको हम लोग वैल्यू दे 3 ओम का। ए बी, बात समझ रहा है, बस हो गया। अब आपको दिमाग में आएगा भैया तो ये फॉर्मूला बताए थे आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। भैया ये फॉर्मूला हम बताए थे जब आपके पास दो रेजिस्टर्स हो, और यहाँ पे तो 3 रेजिस्टर है ना। अरे समझा करो बात को, फील द इमोशन भैया, फील द इमोशन। फाइन, चलो बढ़िया। तो आपको ये बात तो समझ में आ गया है कि आप कैसे पता करोगे कि कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है। इफ द सेम, अगर रेजिस्टर्स के अक्रॉस सेम करंट फ्लो कर रहा है तो सीरीज, अगर डिफरेंट करंट फ्लो कर रहा है तो पैरेलल। कहानी खत्म, नो चाप, रिलैक्स। सेम क्वेश्चन यहां भी बोला है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हमेशा दो टर्मिनल के बीच में ही हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, हमेशा दो टर्मिनल के बीच में ही हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब खुद जल्दी से इमेजिन कर लो, जल्दी से इमेजिन कर लो कि यहां से अगर करंट आई जाएगा, इस पॉइंट पे आने के बाद करंट खुद को दो डिफरेंट पाथ में डिवाइड कर लेगा, यहां से I1, यहां से I2। मतलब कि दोनों ब्रांच से सेम करंट नहीं फ्लो कर रहा है। अगर सेम करंट नहीं फ्लो कर रहा है इसका मतलब क्या है, दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में है, इसका मतलब वो दोनों पैरेलल में है। तो सुविधा के लिए इसको नाम दे रहे हैं हम R1, इसको नाम दे रहे हैं R2। ठीक है, ओके। सॉल्यूशन, हियर R1 R2 are in सीरीज, आर इन पैरेलल। जैसे ये दोनों पैरेलल में है इसका मतलब क्या हुआ, हम बोल सकते हैं अब सिंस यहां पर सिर्फ दो है, सिर्फ दो है, therefore the equivalent, the equivalent resistance is simply बोल दें R equivalent is equals to R1 into R2 by R1 plus R2। एक है 3 एक है 6, तो 3 इंटू 6/3 + 6, मतलब 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 6/3 + 6 9। तो ये 3 इससे कट गया, नीचे आया 3, ये 3 को काट दिया, ऊपर आया 2, तो आंसर आया 2 ओम। कहानी खत्म। इसका मतलब यहाँ पर एक, ये टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच में एक सिंगल रेजिस्टेंस आएगा, इसका वैल्यू है 2 ओम, आर इक्विवेलेंट। बात समझ में आया। यहां पर सिंस सिर्फ दो रेजिस्टर्स था तो हमने ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लिया, एकदम फाइन। फाइन, चलो बढ़िया, समझ में आ रहा है आपको, अब मजा आ रहा है ना। चलो इसको देखो, ये आया था आपका स्पेसिमेन पेपर 2018 में, अच्छा क्वेश्चन है पर क्या बोला है, अ मेटल वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम। कितना रेजिस्टेंस है
60 ओम, एक मेटल वायर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 60 ओम। फाइन फाइन, मतलब कि एक रेजिस्टर है, यहां पर एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस है, डायग्राम बना के सॉल्व किया जाएगा, इसका रेजिस्टेंस है 60 ओम। अब क्या किया गया, इट इज कट इनटू 3 इक्वल लेंथ्स। अब इसको 3 इक्वल लेंथ्स में काट दिया गया है, 3 इक्वल लेंथ्स में, मान लो ये काट दिया गया, ये काट दिया गया, मतलब कि अब आपके पास ये 3 रेजिस्टर्स, इसको 3 रेजिस्टर्स में डिवाइड कर दिया गया, इसको 3 रेजिस्टर्स में डिवाइड कर दिया गया। एंड सिंस इक्वली काटा गया है, तो हर एक वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 ओम, 20 ओम, 20 ओम। क्यों? बिकॉज वी नो द फैक्ट दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये बात समझ में आया ना? सिंस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मेरे पास क्या हुआ, टोटल था 60, जब 3 इक्वल पार्ट में काटे तो 20 20 20। तो ये हो गया आपका, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो। बात समझ में इतना क्लियर है? Find the equivalent resistance when two parts are connected in parallel and the third part in series with them. बात सुनो क्या बोला। पहली बार तो आपके पास एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस 60 ओम था, उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो हर एक वायर का रेजिस्टेंस हो गया 20 20 20। अब क्या बोल रहा है कि the two parts are connected in parallel, इसमें से ये दो कोई भी दो ले लो और इन दोनों को हम लोग ने पैरेलल में जोड़ दिया, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया, ठीक है। अब उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा बचा है उसको हम लोग ने सीरीज में ऐसे जोड़ दिया, ये हो गया मान लीजिए R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। अब देखो बात आपको चमका कि नहीं चमका, ये हमने नहीं किया, मेरा मन का खुरपात नहीं है। और इन दोनों टर्म्स को नाम दे रहे ए एंड बी, खुद से नाम दिया, खुद से। तो यहाँ बोला है, समझ आ रहा है? Find the equivalent resistance between two parts when two parts are connected in parallel, ये हो गया पैरेलल में, and the third part is in series with them, in series with them। हो गया सॉल्यूशन, कर देते 2 मिनट काम है। Here R1 is parallel to R2, R1 is parallel to R2, therefore their equivalent resistance is, क्या होगा, अगर ये दोनों पैरेलल में है हम इसको मान ले रहे हैं जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है आर इक्विवेलेंट R1, आर इक्विवेलेंट डैश। अच्छा छोड़ो, इतना हाई फाई नहीं करते लोग, हम इसको, अब सिंस यहाँ पर ये है हम इसको x मान लेगा, x x, और इसका वैल्यू कितना होगा, सिंपली दो है पैरेलल में तो हो जाएगा R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 20, अरे तो और इजी है, 20 इंटू 20 बाई, ये हो जाएगा 40, ये इससे कटा यहाँ पर आ जाएगा 2, ये इससे कटा यहाँ पर आ जाएगा 10, तो x का वैल्यू आ गया 10 ओम। इसका मतलब अगर हम फिगर बनाए तो कुछ ऐसा बन गया, ये पॉइंट ए था, जो रोल ये दोनों मिलकर प्ले कर रहा था उसके जगह आ जाएगा ये सिंगल, एक यहाँ पर एक सिंगल ये रहा ही, ये R3 जो 20 ओम है, और ये मेरा x जो 10 ओम आया। देखिए बात समझ में आया कि नहीं आया? बाप रे बाप, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, माथा खराब हो गया, गर्मी से पसीना हो गया। ठीक है, बात समझ में आया? ये दोनों पैरेलल में था तो पैरेलल का काम आसान हो गया। अब आपको इसका इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब कि जो रोल ये दोनों प्ले कर रहा था वो सेम रोल ये अकेला प्ले कर लेगा यहाँ पर। अब क्या हुआ, नाउ x, नाउ नाउ x and R3 are in series, therefore
R equivalent of is equals to simply x plus R3, that means x है 10, ये है 20, आंसर है 30 ओम, कहानी खत्म। और इसको हम पता एक्स क्यों लिए हैं, क्योंकि ये आर इक्विवेलेंट यहाँ पे आने वाला था, हम कुछ भी रैंडम नंबर ऊपर ले लिया। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये दो को पैरेलल में लिया पहले, तो पहले हमने इसका पैरेलल का रिजल्ट निकाल लिया, फिर सीरीज में ऐड कर दिया, आंसर निकल गया ए और बी के इसमें। ठीक है, ओके। चल एक और क्वेश्चन कर लेते हो आज, एक और क्वेश्चन कर लेते हो, इसको किया जाए। ये कौन सा क्वेश्चन है? हाँ ठीक है, ये देखिए क्या बोला है। A uniform wire of thickness, a uniform thickness with a resistance is cut into three equal pieces and they are joined in parallel. Find the resistance of the parallel combination. यहां पर क्या बोला सुन लो, यहां पर बोला है आपको कि आपके पास एक सिंगल वायर था, एक सिंगल वायर है ऑफ रेजिस्टेंस 27 ओम। ठीक है, ठीक है। नाउ व्हाट यू डिड इज, आपने इसको कट किया थ्री इक्वल पार्ट्स में, थ्री इक्वल पीसेस में इसको कट कर लिया। जैसे आपने इसको थ्री इक्वल पीसेस में कट किया, आपके पास एक्चुअली में क्या हो गया, अब आपके पास अब जाकर तीन रेजिस्टर्स है, एंड सिंस वी हैव कट इट इनटू इक्वल पार्ट्स, ईच रेजिस्टेंस R1, R2, R3 will have the same numerical value, कितना 27 को 3 से डिवाइड कर दो, 9 ओम, 9 ओम, 9 ओम। ये बात समझ में आया, 9 ओम कहां से आया, क्लियर है? ओके फाइन, चलिए बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया हम लोग को। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन, उसका हम लोग ब्रेक ले लेंगे, ये वीडियो को रोक देंगे, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे फिर से। ओके चलो बढ़िया। अब क्या बोला है, एंड दे आर ज्वाइंड इन पैरेलल, दे आर, दे आर सारे के सारे को पैरेलल में ज्वाइन कर दिया है, मतलब कि ये रहा मेरा R1, ये रहा मेरा R2, ये रहा R3, और इन तीनों को ही पैरेलल में ऐसे जोड़ दिया गया है, सच दैट ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, और बोल रहा है आपको तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के दीजिए। मतलब कि जो रोल ये तीनों अकेले प्ले कर रहा, मिलके प्ले कर रहा था, वो सेम रोल एक सिंगल रेजिस्टेंस भी कर सकता है। आप मुझे इसका वैल्यू बताइए कितना होगा ये। बात समझ में आया? ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर सोल्यूशन के नाम पर, देखो ये सब चीज भी सोल्यूशन में आएगा, सब कुछ सोल्यूशन में आएगा। सोल्यूशन में आप बोल सकते हैं हेयर R1, R2, R3 are in parallel, are in parallel, जैसे पैरेलल में है, so the 1 by R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, मतलब ये हो जाएगा सिंपली 1 by 9 plus 1 by 9 plus 1 by 9, सिंपल एडिशन हो जाएगा 3 by 9, तो ये हो गया 1 by R equivalent, तो R equivalent हो जाएगा 9 by 3 which is equals to 3 ओम, आंसर। अब आप एक चीज समझने की कोशिश करो कि हम लोग ना पहली बार ये सब न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। बट जब आप एक बार सारा न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, फिर चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको हम लोग यहीं पर रखते हैं और फिर कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। चलो हम बस बोल दे रहे हैं, इसको हम होमवर्क दे रहे हैं, आप ट्राई करना, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, इसको होमवर्क दे रहे हैं, इसको भी आप होमवर्क दे रहे हैं, बस ट्राई करना, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो हम नेक्स्ट क्लास में करा ही देंगे। इसको भी सेव कर दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, इसको भी होमवर्क दे रहे हैं, सारा आईसीसी क्वेश्चंस को आप बस ट्राई करना, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ये भी लो होमवर्क, ये भी लो होमवर्क, और ये हो गया खत्म। सारा क्वेश्चन जो होमवर्क दिया वो हम करा देंगे, तो एक बार आप खुद से ट्राई करो पहले। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग, good evening, good afternoon, good evening, and finally, good night. Have a pleasant day ahead. चलिए, thank you. Have a nice day.
sayonara.